Hello children, welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. I am Amit Toshniwal, your accounts teacher. This video is for class 12th, subject is accountancy. Chapter number 12, analysis of financial statement, part 2. We'll learn tools for financial analysis. So we discussed that financial analysis helps complex figures to converting complex figures into simple figures, for which different techniques, tools and methods are used, and some of them are there in your course. First is comparative statement, second common size statement, third accounting ratios and ratio analysis, that is your next chapter. First two you will study in this chapter only. Fourth, trend percentage analysis. Fifth, cash flow statement. Sixth, fund flow statement. And seventh, break even point analysis. So 5, 6, 7 is the last chapter of your book, cash flow and fund flow. In this we'll do first two, comparative statement and common size statement. Children, the meaning of comparative you know. Comparative means tulna karna. So comparative, the financial figures of the current years are compared with the figures of previous years. And absolute decrease or increased means absolute decrease or increase is found, and they are converted into percentage form finally. Okay, so this is called comparative statement. So you know that two statements are made, income statement and financial position statement. So first we will see what is the purpose or utility, or you can say the importance, significance of comparative statement. First thing that we discussed previous also, मतलब पहले भी बात हो चुकी है, सिंपल कर देते हैं फिगर को, अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं. सेकेंड, we can know the trend of changes in production, sales, income and expenses for different periods. It can be known easily. Then they highlight shortcomings of the business and what are the weak aspects. So those lackings or shortcomings can be fulfilled in future. Fourth is display an important role for making future policy. For the prospects and future estimations can be done, budgets can be made, etc. Fifth, what are the present achievements can be known, and it gives a signal, an indication for the future. Through this we can draw some conclusions regarding profitability, financial soundness of business, solvency, sales, operating expenses and other things. So such things can be found. So these two are made, income statement and financial statements. Now we'll discuss comparative income statement, which is also known as profit and loss account, which presents net profit or net loss of the business. तो इसमें जो आइटम्स आने वाले हैं वो कौन कौन से रहते हैं. मेन आइटम्स जो इसके हैं वो हैं सेल्स, cost of goods sold, purchase, stock, direct and indirect expenses, etc. They are written separately and they are compared with the previous years. So to know with the previous years, just to know whether they are increasing or decreasing. Okay, so how to make preparation of a comparative statement. So for this you have this pro forma. First is revenue from operation, which includes receipt from sale of goods after return. मतलब जो नेट सेल्स है वो इसमें आएगा तुम्हारे पास. नेट सेल्स समझते हो ना,
इसका एक फार्मूला होता है अपने पास जो तुमने 11th में पढ़ा होगा, तो वो फार्मूला जो है वो इसमें आ जाएगा, जो है तुम्हारा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। फिर इसी फर्स्ट वाले में आ जाता है रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, receipts from services, cash discount received and commission received। तो ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यू हैव टू लर्न एंड ऑलरेडी यू हैव लर्नड दीज थिंग्स इन chapter number 11, so just go through them once again so that things will be more clear to you। सेकेंड इज़ अदर इनकम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स और रिसीट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड एट्सेट्रा। फिर इनका टोटल हो जाएगा, 1 और 2 का टोटल कर देंगे, जितना भी होगा तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्सपेंस, फोर्थ पॉइंट। तो एक्सपेंसेस दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑफ इनकम। तो उसको निकालने के लिए हम जितना भी एक्सपेंस का टोटल हो रहा होगा उसको हम माइनस कर देंगे। अब यदि तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, तो ये फार्मूला तुमने 11th में पढ़ा हुआ था। क्या होता है फार्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस ऑफ गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उससे तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। ठीक है, इसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड भी कहते हैं। फिर और एक्सपेंसेस जो इसमें आने वाले हैं वो हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एंड वेलफेयर फंड्स, जिसमें कि सैलरीज होती हैं, वेजेस होती हैं, एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं एक्सपेंसेस में। तीसरी चीज़ें आती हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, कमीशन जो पे किया हो वो, कैश डिस्काउंट दिया हो, टेलीफोन एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, कमीशन पेड, रेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इनका आप कर लेंगे टोटल। तो जो टोटल एक्सपेंस आएगा उसको हम माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू से। तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से जो भी टैक्स पेएबल होगा वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका तुम कॉलम देख रहे होगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स जो तुम्हें क्वेश्चन में दिए रहेंगे, करंट ईयर के फिगर्स वो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिए रहेंगे, एब्सोल्यूट इंक्रीज़ यानी कि सेकंड कॉलम में से थर्ड वाला कॉलम माइनस करना है तुम्हें, प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर वाला माइनस करना है, एंड फिर उसको परसेंट में चेंज करना है। तो ये कैसे करेंगे? सी द इलस्ट्रेशन। You are given a question that you will find on page number 513 in your book. So you are given revenue from operation of 2 years, 2017 and 2018, then employee benefit fund of these 2 years, cost of goods sold, other income, selling distribution expenses and tax. So things are given to you. Now you have to arrange them अकॉर्डिंग टू योर प्रोफार्मा विच इज़ दिस। इस प्रोफार्मा में तुमको उसको अरेंज करना है। तो वो सीक्वेंस तुम्हें पता होना चाहिए, सीक्वेंस तुम्हें याद होना चाहिए, और 1-2 क्वेश्चन करने के बाद वो तुमसे बनने लगेगा। ठीक है, अब इसका अपन सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 17 का है 16 लाख और 18 का है 20 लाख। तो करंट ईयर में से तुमने प्रीवियस ईयर का माइनस किया तो तुम्हारे पास आया 4 लाख। 20 लाख माइनस 16 लाख, इट कम्स टू 4 लाख। अब 4 लाख से तुम्हें क्या बनाना है? परसेंट। तो जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है अपॉन में प्रीवियस ईयर का जो भी रहेगा उसको अपॉन में मल्टीप्लाई 100, यानी 4 लाख अपॉन 16,000 मल्टीप्लाई 100, सो यू विल गेट 25%। सिमिलरली फॉर द सेकेंड, प्रीवियस ईयर की अदर इनकम कितनी है? 80,000 और करंट ईयर की है 1 लाख। तो 1 लाख माइनस 80,000 यू विल गेट 20,000। सो 20,000 जो आ रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, इट इज़ डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर, यानी 80,000 मल्टीप्लाई 100, यू विल गेट 25%।
नाउ टोटल किया तुमने उसका, प्रीवियस ईयर में टोटल कितना होगा 16 लाख प्लस 18,000, 16,80,000। करंट ईयर का टोटल 20 लाख प्लस 1 लाख बिकम्स 21 लाख। फिर इसका डिफरेंस निकाल दिया तुमने, 21 में से 1680 माइनस किया तो तुम्हारे पास आ गया 4,20,000। तो अब जो डिफरेंस आया है तुम्हारे पास इंक्रीज या डिक्रीज का, अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर फिगर, यानी 4,20,000 डिवाइडेड बाय 16,80,000 मल्टीप्लाई 100, यू विल गेट 25। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि सारी चीज़ें 25% निकल रही है, ऐसा नहीं होगा, परसेंट चेंज निकल सकते हैं, है ना। अब इसके बाद आते हैं अपन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये दोनों ईयर के दिए 6 लाख और 750, डिफरेंस तुमने निकाला तो आया 1,50,000। देन अगेन 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 lakhs मल्टीप्लाई 100, यू विल गेट 25%। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 lakhs एंड 2,50,000, माइनस किया दोनों को तो आया 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाई 100, यू विल गेट 25%। देन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 60,000 एंड 75,000, डिफरेंस निकाला 15,000 आया। 15,000 को फिर डिवाइड किया प्रीवियस ईयर के फिगर से मल्टीप्लाई 100, 25%। फिर तुमने सारे एक्सपेंस का टोटल कर लिया। तो पहले प्रीवियस ईयर का कॉलम देखो, 6 + 2 8 lakhs प्लस 60,000 8,60,000। फिर एक्सपेंस वाले का टोटल किया तो वो हो गया 10,75,000। 750 + 250 10 लाख और उसके बाद 75,000। फिर डिफरेंस निकाल दिया, 10,75,000 माइनस 860, इट कम्स टू 2,15,000। अब इसका परसेंट निकालना है तो इंक्रीज डिक्रीज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर्स मल्टीप्लाई 100, 25 आ गया। अब इसके बाद क्या किया तुमने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए जो थर्ड वाला था उसमें से तुमने फोर्थ वाला माइनस कर दिया। थर्ड है ना, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस हुए, तो 1680 में से 860 माइनस हुआ तो तुम्हारे पास आया 820 प्रीवियस ईयर में। करंट ईयर में 21 लाख है टोटल रेवेन्यू, तीसरे नंबर पे देखोगे, और उसका टोटल एक्सपेंस कितना है 1075। दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आया 1025। अब फिर वही करना है, 1025 में से 820 माइनस किया तो हमारे पास आया 2,05,000। तो 2,05,000 इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाई 100, फिर 25 आ जाएगा। तो 2,05,000 अपॉन 820 मल्टीप्लाई 100। टैक्स, तो टैक्स दिया है दोनों ईयर का 220 275। तो 275 में से आपने 220 माइनस किया, आया 55,000। 55,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 मल्टीप्लाई 100, इट कम्स टू 25%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पाँचवें नंबर का है उसमें से सिक्स्थ वाला मतलब कि टैक्स माइनस कर दो। तो 820 में से 220 गया, हमारे पास बचा 6 लाख। यहाँ पर 1025 में से सब्ट्रैक्ट किया 275 तो बचा 750। अब तीसरे वाले में हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेवन्थ कॉलम में जो तुमको दिया है 7,50,000 माइनस 6 लाख इज़ इक्वल टू 1,50,000। ये हमारा इंक्रीज़ है, तो इंक्रीज़ अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर यानी 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो यू विल गेट 25। तो ये सबसे आसान चैप्टर है तुम्हारी बुक का और सबसे ईजीएस्ट वन है ये। तो अब इनके जो क्वेश्चन है वो तुम करोगे, इसी प्रकार से तुम बैलेंस शीट बनाओगे। तो बैलेंस शीट के लिए एक अपन वीडियो और लेंगे जिसमें हम लोगों को बैलेंस शीट का प्रोफार्मा और उसको सॉल्व करना बताएंगे। तो अभी इनके क्वेश्चंस करना, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जांपल्स उनको करना पहले, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं।